Thank you so much for joining us today. Assalamu alaikum everyone and greetings to you all. Hope you all are doing well. First of all, thank you so much for joining us today for our webinar titled as The Future of Digital Marketing, organized by IEEE Sayed University of Engineering Technology, Computer Science Society in collaboration with IEEE Young Professionals Karachi and Google Developer Student Club, Sayed University. We are extremely overwhelmed to have you all today with us. This is Samra Hussain and I'll be your host for today for the session. I'm the Communication Officer of IEEE Young Professional Karachi. On behalf of IEEE Young Professional Karachi, I humbly welcome you all for today's webinar. If I want to introduce our guest speaker, Mr. Junaid Tariq, then I'd say that he has a record of winning awards like SEO Consultant, Digital Marketing, CMO, Google FB, Harvard Certified. With an experience of 15 plus years, also he has worked with multiple global brands like Planet F1, Football365.com, and much more. If we talk about Pakistani brands, then he has worked with Stylo, Orient, PTCL, and much more. He has managed more than 50 online businesses like e-commerce, telecom, B2B marketing, and much more. Overall, to sum up, he is going to motivate you all throughout the session. Now, I'd like Mr. Junaid Tariq to take over and continue. Yes. Hi everyone, how are you? Okay, you guys can hear me clearly? Yeah, you're audible, Mr. Junaid. Okay, just let me start the video. Okay. So first of all, thank you everyone for joining me in this session today. My name is Junaid Tariq, and let's start up. Let me share the presentation with you guys to just get it started. So just let me know when you see the screen. I think I don't have the screen sharing capability. Can you please share access of the screen sharing? Hello? Hello, Miss Samra? Okay, let me share the screen. You guys, now it's fine, I think, yeah. So are you guys able to see my screen? Yes, we are. Okay, so this is a little presentation that I've made for you guys, so it will be easy for all of us to understand. And you can also keep the screenshots of the presentation and later on ask the questions where you feel the difficulties. So let's just start up with digital marketing. कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और जो है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है पूरी दुनिया में इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत ज़्यादा बूम है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ जो है वो डिजिटल मार्केटर्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इसकी जो स्कोप है वो हर फील्ड में अप्लाई होती है लाइक अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं आप इंजीनियर हैं आप डॉक्टर हैं आप जो है बिजनेसमैन है आप जिस भी दुनिया के प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके बिजनेस में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए सो आई एक्सप्लेन यू गाइस फर्दर के किस तरह डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकती है आपके प्रोफेशन में आहिस्ता आहिस्ता आप अंडरस्टैंड करेंगे और होपफुली being technology students or graduate students, you guys already have basic ideas about digital marketing, and most probably you guys are already using these tools as well. So just to start off our outline, like first of all, I'll give you my introduction. Then we'll discuss that what is digital marketing, and then we'll discuss the terminologies. कि digital marketing में कौन कौन सी terminologies, key terminologies use होती हैं.
एक अच्छी कैंपेन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए। हम कुछ केस स्टडीज और प्रीवियस कैंपेन्स देखेंगे जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर कैंपेन्स हुई हैं। फिर उसके बाद हम जो है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो है कैरियर पाथ, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं एज अ मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग पोजीशन पे, तो उसकी क्या कैरियर पाथ होगी आपकी, और क्या आपकी जो है कैरियर की डायरेक्शन होनी चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट ऑफ करते हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू। तो I'll tell you guys, most probably you guys already know, और host ने भी आपको बताया कि I have around 15 plus experience, or years of experience in SEO and digital marketing. और I have served in major organizations like PTCL, Rozee.pk, Abacus Consulting, Orion Group of companies, and other than that, these are only the local corporates which you guys know like Stylo as well. I've worked in a consultant capacity. अदर देन दैट ग्लोबली एटलीस्ट 20 कंट्रीज के अंदर मैंने एज डिजिटल मार्केटर सर्व किया हुआ है ग्लोबली, जिसके अंदर यूके, यूएस, पूरा यूरोप के अंदर काफी सारी कंट्रीज हैं, और मीना रीजन के अंदर कतर, बहरीन, दुबई and Pakistan, India, all these countries I've worked with major clients, almost 100 to 200 startups I've worked with these globally. So over here, this is my website. It has all the information about me, JunaidTariq.com. You can see all the major campaigns and the companies I've worked with over here, and the kind of campaigns that I've been running throughout. And आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने एक जो है ब्लॉग भी बनाया हुआ है जिसका नाम है SUBTOPICS.com। यहाँ पर ये बेसिकली हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसके अंदर ज्वाइन करके आप लोग, यहाँ पे हमारा फेसबुक ग्रुप है और फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बेसिकली मकसद ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, वो जो भी इस पर ज्वाइन करता है उसको लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो यहाँ से आपको बहुत सारा की मटेरियल मिल सकता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आप इंडस्ट्री में इसके अंदर हमारे एडेड हैं, तो आपके कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस कम्युनिटी के थ्रू पूछ सकते हैं, जो कि SEOdigitalmarketer.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। Coming back to the point, starting about my profile, who is Junaid Tariq? This is on my website about Junaid Tariq, the brand I've worked with, the certifications and the awards, and this is one of the major awards I've got in digital marketing, digital best digital marketer in Pakistan. सो एक्चुअली उन्होंने किया ये था कि पूरी पाकिस्तान से डिजिटल मार्केटर्स की प्रोफाइल्स मंगवाई थी, और माय व्हेन आई सेंड माय प्रोफाइल, तो उन्होंने जो है देखा कि मेरी प्रोफाइल जो है टॉप 10 डिजिटल मार्केटर्स में रैंक कर रही है पाकिस्तान में, और फिर उन्होंने ये अवार्ड इस्लामाबाद में तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है उसके साथ साथ मुझे हार्वर्ड के लिए भी जो है हार्वर्ड से भी 6 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, गूगल सर्टिफाइड, गूगल ग्रीन बेल्ट, गूगल ब्लू बेल्ट एज वेल। ये सारा कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, और डिफरेंट जो है यहाँ पे आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। सो गेटिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन आफ्टर द इंट्रोडक्शन, सो let's get to some of the campaigns that I've done major, like ये थोड़ी सी पुरानी कैंपेन्स है, रिसेंट कैंपेन्स थोड़े से मैं अभी आपको बहुत ज्यादा रिसेंट कैंपेन्स तो नहीं शो कर सकता क्योंकि हमारे जो है काम कर रहे हैं या उनके तक अभी शो नहीं कर सकते, लेकिन प्रीवियसली जो बड़ी कैंपेन्स है पाकिस्तान के अंदर जो हम लोगों ने रन की हैं वो हम आपको डिस्प्ले कर सकते हैं। PSL की कैंपेन जिसमें PTCL का लोगो प्लेयर्स के बैक पे, उनकी शर्ट के बैक पे था, वो हम लोगों ने लॉन्च की थी पाकिस्तान में, विच वाज अ वेरी गुड हिट एट दैट टाइम। ये कितना रोला डाले का नाम से एक हमने सॉन्ग भी रिलीज किया था डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इट वाज अ डिजिटल
आप PTCL के पेज पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, एंड इट गॉट hundreds and thousands of views, and I think almost million के round in इसके views आए थे at that time. This campaign was designed by our team. फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स का लॉन्च पाकिस्तान में हुआ था, जब उस वक्त हम लोगों ने कैंपेन डिजाइन की थी नेटफ्लिक्स के लॉन्च के लिए. And this is an example of a creative campaign कि suppose जैसे आप किसी स्पोर्ट्स को, आप किसी बैंड में काम कर रहे हैं और आप किसी स्पोर्ट्स को इंडोर्स कर रहे हैं, तो वहां पे ये हमने एक क्रिएटिव कैंपेन लॉन्च की थी. देयर वाज अ पैरेट and the parrot used to pick up the cards that which team will gonna win today's game. So ये एक बड़ी जो है जबरदस्त कैंपेन हमारी रही थी पाकिस्तान में, और ऑल ओवर इसके बहुत अच्छे रिव्यूज और आए थे. ब्लॉगर्स ने भी इस कैंपेन को ऑनलाइन पिक किया था और काफी ज्यादा टॉक अबाउट इसकी हुई थी मीडिया के ऊपर इस कैंपेन की. फिर इसके बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर हमने PTCL के साथ मिलकर PGL एक पाकिस्तान गेमिंग लॉन्च जो है, ये जो है हमने इंट्रोड्यूस करवाया था. इसने पूरे पाकिस्तान के गेमर्स को कनेक्ट किया था और उनको गेमिंग के लिए पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था, और उसके साथ साथ उनको अवार्ड्स वगैरह भी दिए थे. इसके बाद हमारी यानी कि ये कुछ कैंपेन है रोजी से रिलेटेड, जिसमें हम लोग जो है जॉब से रिलेटेड कैंपेन्स फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने चलाई थी. ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने. और ये Rozee.pk आई होप्स आप सारे जानते होंगे, पाकिस्तान की नंबर 1 जॉब साइट है. उसके साथ जब मैं काम कर रहा था वहां पे हम लोगों ने TVC लॉन्च किया था एट दैट टाइम, और डिजिटली इसको लॉन्च किया था. एट दैट टाइम इट गॉट अबाउट 1.5 मिलियन व्यूज इन जस्ट अबाउट 7 days और शो. और ये इसको मीडिया पे भी लॉन्च किया गया था और डिजिटली भी ये TVC लॉन्च हुआ था एट दैट टाइम. इसके बाद एक और क्रिएटिव एग्जांपल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक रोजी की ही एक और एड की जो वी यूज्ड टू रन ऑन सोशल मीडिया टू गेट our leads from social media. Like we are targeting the business owners, like, and we are saying them that is your hiring practices stuck in the stone ages? Like, are you still advertising in newspapers to get people hired for your company? So why don't you try, or why don't you try like the premium services of Rozee, and why don't you enroll over there to get more qualified people for your business? Just 1 minute. I think maybe join the session is name. Okay guys, like ये जो है meeting about, like, we will be rejoining in 5 minutes because the link is going to expire. So I've just got notified by the host. So we'll rejoin on this link again in about 5 minutes. So we'll continue the PPT. So coming to the recent history of marketing, that इस वक्त बेसिकली अगर आप एक अच्छा मार्केटर बनना चाहते हैं, और अगर इवन इनफैक्ट आप अगर एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाउ इट हैज evolved, it is very important. Like, some people think that okay, it's old school, it's the time is gone, like we don't need to know about what has been done in the history. But if you know, आपकी जो बेस होती है किसी भी चीज की या किसी भी इंडस्ट्री की, वो बनती हिस्ट्री से ही है. जब आपको हिस्ट्री के बारे में उसका पता होता है कि हिस्ट्री में इस तरह उसकी एवोल्यूशन हुई है, तो फिर आप उसके अंदर एक बेटर प्रोफेशनल बन सकते हैं उस फील्ड के अंदर. और मार्केटिंग की नॉलेज और marketing and sales is kind of linked up, and any business to grow in this age or time, you cannot avoid marketing or sales if you want to become an entrepreneur or businessman. So marketing जब आज से like marketing की history तो बहुत पुरानी है, like you can relate to hundreds of years before, but we start from the near history, like around 20 years or 15 years before. So initially what people used to do, जब ये like digital ads का, SEO का और social media का इतना ज़्यादा boom नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि लोग सबसे पहले outbound marketing से start करते थे अपना business, like flyers, pamphlets, call centers. Like they used to call people
to sell their services or products online, which is called the probability marketing. Like probability में ये होता है. I think someone has just turned on his mic. Can you please pause the mic? Yeah, thank you. So outbound marketing is all about probability. कि कितने लोगों को आपने अप्रोच किया और आउट ऑफ देम कितने लोग जो है आपकी तरफ जो है आपकी ऑफर से इंटरेस्टेड हैं और वो आपको अप्रोच बैक करना चाहते हैं. सपोज आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, और आप आउटबाउंड कॉल कर देते हैं कि मोबाइल फोन तो हर एक की जरूरत है, तो मैं किसी ना किसी को कॉल करूंगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई लोग तो इंटरेस्टेड होंगे. आपने अप्रोक्सीमेटली 100 कॉल्स की, out of them you got 1 or 2 orders. This is called outbound marketing or probability marketing. That इतने अगर आप लोगों को चेस करें तो उसमें से इतने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे. This was the outbound marketing. और the call centers also used to do that. Call centers के अंदर भी वो every agent used to call 100 to 200 to 300 even people on daily basis. Out of them some people might convert and might say yes to the offer. अनसॉलिसिटेड ईमेल मार्केटिंग, ये वो तरीका है जो आज तक यूज हो रहा है अनसॉलिसिटेड मार्केटिंग का. एक ईमेल वो होती है जो जहाँ पे आप किसी कंपनी में वेबसाइट विजिट करते हैं या सोशल मीडिया विजिट करते हैं, वहां पे क्लिक करके आप उसको प्रॉपर्ली सब्सक्राइब करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको ईमेल्स रिसीव होती हैं. दैट आर कॉल्ड सॉलिसिटेड ईमेल, क्योंकि आपने उस ऑफर के ऊपर सब्सक्राइब किया होता है और उस ऑफर के अगेंस्ट आपको जो है उन्होंने ईमेल की होती है. तो दैट इज फाइन. बट देयर आर लॉट ऑफ स्पैमी ईमेल्स. आई एम श्योर आप लोग अगर अपना जीमेल आईडी या कोई भी ईमेल आईडी ओपन करके देखेंगे तो देयर माइट बी थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ईमेल्स इन योर जंक फोल्डर एंड पीपल आर ऑफरिंग यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज to buy on your email ID. This is all spam and this is all junk. Okay, so also along with that, previously and still people are used to physical marketing. कि वो मार्केट में जाते हैं फिजिकली और जाके अपनी फिजिकली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने वेंडर्स को, अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं. जैसे कि इसकी एग्जांपल कोई भी जो है एफएमसीजी कंपनी की भी हो सकती है कि उसके अंदर कोई भी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. सपोज एक चिप्स का नया ब्रांड लॉन्च होता है तो वो मार्केट में जाकर जितने भी होल सेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं उनको अप्रोच करते हैं और फिजिकली जाके अपनी जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो ये तरीका जो है ये सारे तरीके बहुत ऑकवर्ड हैं और जो बंदा भी इन तरीकों के ऊपर कर रहा होता है उसको काफी ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि सामने वाले को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आप क्या चीज सेल कर रहे हो और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता और आप जाके उसको सेल कर रहे हो. दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग कि किस तरह इसने जो है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर पिछले 10 to 20 इयर्स के अंदर इवॉल्व किया है. एंड गाइस आई थिंक द मीटिंग लिंक इज गोइंग टू एक्सपायर एंड वी गोना rejoin in just then less a minute now. Okay, so we're gonna start with now what is digital marketing. If we have looked at the offline marketing channels or the outbound marketing channel, joining. Okay, so there are still people joining us. Okay, so we were talking about digital marketing, that what is digital marketing. So just let us start with the digital marketing. In simple words, you can say digital marketing is the promotion of product, services, brands via digital mediums like Facebook, Google, YouTube, Twitter. So previously the mediums were TVC, billboards, and all these offline things like call centers. Right now in 2022, the mediums are like Facebook, Google, YouTube, Twitter. So आज 2022 में हर बंदा फेसबुक के ऊपर है, गूगल के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है. तो जितनी भी दुनिया मीडियम्स पे और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं लाइक यूएस, यूके, वहां पर जितनी भी मार्केटिंग है आपकी वो सारी की सारी जा चुकी है डिजिटल मीडियम से. और जो ट्रेडिशनल मीडिया है, डिजिटल मीडिया ने उसको स्पेंडिंग वाइज ओवरटेक कर लिया है. लाइक पहले लोग जो थे वो टीवी के ऊपर स्पेंड करते थे एड्स के ऊपर बहुत ज्यादा,
और जो है बिल बोर्ड्स के ऊपर। अब जो एडवर्टाइजर्स की फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस है, डिजिटल फर्स्ट प्रेफरेंस हो चुकी है। जितने भी मेजर एडवर्टाइजर्स हैं, यू कैन सी देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक्टिव, और वहां पर वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने ट्विटर को बाय करने की ऑफर की है, और काफी हद तक नेगोशिएशन और चल रही है, और ऑलमोस्ट डील डन भी हो चुकी है। आई थिंक जो वो ट्विटर को बाय करना चाह रहे हैं, ट्विटर पे क्या होता है, ऐसी क्या चीज है जो ट्विटर को वो बाय करना चाह रहे हैं बाकी सारी चीजें छोड़ के। एंड द डील इज अराउंड $44 बिलियन, जो कि एक अमाउंट कोट हो रही है इंटरनेट के ऊपर। $44 बिलियन इज अ बिग ह्यूज अमाउंट, यानी कि 1-2 बिलियन डॉलर्स के अंदर तो पूरी पूरी इंडस्ट्रीज होती हैं, और ये $44 बिलियन के अंदर सिर्फ एक मीडियम को जो ट्विटर है उसको यानी कि बाय कर रहे हैं। इसकी रीजन क्या हो सकती है आप लोगों के ख्याल में? रीजन इसकी ये, वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि जो ट्विटर है उसके ऊपर पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स और जो बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, वो अपनी ओपिनियंस जो है शेयर करते हैं, और वहां से पूरी मार्केट के अंदर न्यूज सर्कुलेट करती है। इवन जो बड़े बड़े न्यूज के चैनल्स हैं, वो लोग भी ट्विटर से अपनी न्यूज को उठाते हैं और ट्विटर के थ्रू अपनी न्यूज लेते हैं। एक सिंपल ट्वीट से पूरी दुनिया की न्यूज जो है वो बनती है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है न्यूज का और इंफॉर्मेशन का, और इन्फ्लुएंसर्स जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। और बिजनेस और पॉलिटिकल रीजंस, बिजनेस रीजंस, इन सब की वजह से ट्विटर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। आपने देखा होगा कि एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक ट्वीट करता है और उसकी बेस पे पूरी एक कैंपेन चलना शुरू हो जाती है मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया के। पहले होता ये था कि न्यूज को हम लोग सुनते थे और फिर हम उसी न्यूज को देखते थे सोशल मीडिया पर। लेकिन अब इतना तेज दौर आ चुका है कि पहले सोशल मीडिया पर न्यूज ब्रेक होती है और उसके बाद चैनल्स के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है उस न्यूज के बारे में या उस चीज के बारे में। तो दैट इज द बिग शिफ्ट which has come in globally, especially after the COVID-19 pandemic, that everything is digital first, and everything is digital these days. So just let us look at some previous historical and current stats of digital marketing or digital stats. Like these are the stats of daily US media consumption. डिजिटल 2017 के अंदर डिजिटल मीडिया कंजम्पशन जो है वो 5.550 मिनट्स तक जा चुकी है, और जो है 2012 में डिजिटल कंजम्पशन जो थी अराउंड 4.10 जो है आवर्स थी पर पर्सन। दिस इज पर आवर्स, एंड दिस इज टीवी का कंजम्पशन जो है आ रही है आपकी। फिर जो है यानी कि ये बता ये रहा है कि टीवी की कंजम्पशन कम हुई है 2012 में 4 hours 38 minutes, एंड देन 2017 में 4 hours 4 minutes रहेगी। तो और अगर आप 2022-23 की देखें तो ये इनमें 90% का शिफ्ट होगा ऑलमोस्ट, यानी कि इतनी ज्यादा जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं वो नीचे आ चुके होंगे, और इससे 90% ज्यादा जो है डिजिटल मीडिया ऊपर जा चुका होगा। इसी तरह जो है जो मीडिया स्पेंड की जो फिगर्स जो है यूएसए की है इंटरनेट के ऊपर, 116 जो है बिलियन डॉलर्स की स्पेंडिंग हुई है यानी कि 2021 के अंदर, और 2017 में ये जो कि 86 बिलियन डॉलर्स के अराउंड थी। टीवी के ऊपर 71 थी 2017 में, और 2021 में 75 बिलियन की स्पेंडिंग है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डिजिटल जो है सबको कंबाइनली भी जो है टॉप कर रहा है, और 2021-22 में तो ये और भी ज्यादा, यानी कि सारे मीडियम को कंबाइन भी कर लें फिर भी डिजिटल की कंजम्पशन और उनकी जो डिजिटल का एडवर्टाइजिंग मार्केट साइज है वो उससे बड़ा ही होगा। सो गाइज लेट्स लुक एट सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज इन डिजिटल मार्केटिंग के। जब डिजिटल मार्केटिंग आप करेंगे अपने बिजनेस की या अपने जो है किसी क्लाइंट की, तो आपको किन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जो कि हार्ट एंड सोल है डिजिटल मार्केटिंग की। अब एक और चीज जो है मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इसी तरह पॉपुलर है, तो लोग समझते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया को लर्न करके, विच इज वेरी इजी, हम डिजिटल मार्केटिंग की हमें नॉलेज आ गई है, या हमें जो है क्या कहते हैं, वी आर डिजिटल मार्केटर्स नाउ बिकॉज़ वी नो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। गाइस डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए डिफरेंटली बिहेव करती है। लाइक
एक डेंटिस्ट को वो सर्विसेज या वो डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट चाहिए हो सकती है जो एक जो है सर्विसेज कंपनी को शायद ना चाहिए हो, और एक सैस बेस्ड कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर सेल करती है उसको वो सर्विसेज हो सकता है ना चाहिए हो जो एक ई कॉमर्स कंपनी को चाहिए हो। इस वजह से जब तक आपकी डिजिटल मार्केटिंग की होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, तब तक आप अपने बिजनेस के या अपने दायरे के अंदर जो आप काम कर रहे हैं उधर तक तो डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है और जो डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उससे आप जो है उसकी नॉलेज आपको नहीं आ सकेगी। तो इसलिए हमने सारी टर्मिनोलॉजीज को कवर किया है इसके अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके। Personally, I've worked in at least 50 to 60 different business categories. I've worked in job related companies, I've worked in SaaS related companies, e-commerce, at least 100 e-commerce companies I've worked with as a consultant. और डिफरेंट यानी कि ओवरऑल आप इंडस्ट्रीज बनाए जो कि 40-50 इंडस्ट्रीज बनती हैं, ऑलमोस्ट किसी ना किसी कैपेसिटी में उनके साथ हम लोगों ने काम किया है। गाइस, स्टार्टिंग विद एसईओ जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक आप सबको पता होगा इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। जब आप गूगल करते हैं कोई भी चीज और उसके नतीजे में जो आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एसईओ। ओके, सो जस्ट इफ आई सर्च समथिंग ओवर हियर इन गूगल, google.com wedding photographers in Lahore. So if I type in here wedding photographers in Lahore, you see all the people they have listed, the companies they have listed the profiles. So wedding photographer in Lahore and in Islamabad, and this is another website. And above that Google listings भी आ रही हैं जो कि लोकल लिस्टिंग है, जो लोगों ने गूगल के ऊपर अपनी जो है लिस्टिंग्स बनाई हुई है। तो these are all called SEO optimized. This is called local SEO, this above one, and the below ones, these are the regular SEO links, and these are the special SEO snippets which are integrated in the website. So these are specially displayed in this area because of their optimization. So इस वक्त गूगल के अंदर पहले ये होता था कि सिर्फ ये वाले रिजल्ट आते थे जब आप कोई कीवर्ड लिखते थे, और अभी भी सर्टेन कीवर्ड्स पर यही मेन आते हैं, लेकिन अब गूगल ने मैप्स को और ये क्वेश्चन आंसर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दी है और इनके ऊपर ज्यादा क्लिक्स आते हैं। सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट और बिजनेस फॉर दैट एज वेल टू गेट मैक्सिमम क्लिक्स। अगर अब सपोज अगर आप गूगल में टॉप पर भी रैंक कर रहे हैं लेकिन करेंटली योर रैंक इज फोर्थ बिकॉज फर्स्ट 3 लिंक्स आर कमिंग अप ऑफ द मैप्स। और अगर मैं एक ऐसी क्यूरी सर्च करूं फ्लाइट टू दुबई, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि गूगल ने यहाँ पे अपने रिजल्ट्स डिस्प्ले करने का मेथड थोड़ा सा चेंज किया है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है एड, एडी एड। उसने सर्च के साथ साथ उसके अंदर एड्स भी डिस्प्ले करना शुरू करती है क्योंकि ये एक बिजनेस क्यूरी है, क्योंकि प्रीवियस जो बिजनेस क्यूरी थी उस पर ज्यादा एडवर्टाइजर्स नहीं उसको गूगल को मिले, इस वजह से उसने एड उनका डिस्प्ले नहीं किया। ऐसे एडवर्टाइजर जो इस क्यूरी के अगेंस्ट गूगल को पे करने के लिए विलिंग थे वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन थे। इस वजह से गूगल ने वहां पे कोई एडवर्टाइजर डिस्प्ले नहीं किया। लेकिन अब जो मैंने क्यूरी गूगल में लिखी है, अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो आप इस क्यूरी की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। इस क्यूरी के थ्रू आप डेली बहुत सारी सेल्स कर सकते हैं। अगर आप इस क्यूरी पे एसईओ में रैंक कर रहे हैं तो आपको डेली बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रोच कर सकते हैं अपनी जो है फ्लाइट बुकिंग के लिए। और यहाँ पर अगर सपोज आप गूगल के अंदर रैंक नहीं कर रहे, या क्योंकि गूगल रैंकिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, सो आप अपना एड रन करके गूगल के अंदर यहाँ पे टॉप कर सकते हैं। बट द डिसएडवांटेज ऑफ द एड इज दैट whenever somebody clicks on your ad you have to pay Google around 50 cents to maybe up to $5. It depends on the kind of query कि यूजर किस किस्म की क्यूरी अपनी सर्च में पुट करा है। आपको जो है यानी कि उस हर क्यूरी के अगेंस्ट गूगल का एक डिफरेंट रेट होता है। डिफरेंट एडवर्टाइजर्स बिड करते हैं गूगल के अंदर कि मैं इस क्यूरी के अगेंस्ट
सपोज $1 पे करना चाहता हूँ, मैं इस क्यूरी के अगेंस्ट 50 सेंट्स पे करना चाहता हूँ, या मैं एक क्यूरी के अगेंस्ट 200 रुपए पे करना चाहता हूँ। एक एडवर्टाइजर कहता है नहीं, मैं इस क्यूरी के अगेंस्ट, इस क्यूरी की मेरे लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मैं इस क्यूरी के अगेंस्ट 5,000 रुपए तक पे कर सकता हूँ या 1,000 रुपए तक पे कर सकता हूँ, और वो बिड करता है। और सबकी बिड्स कलेक्टिवली कलेक्ट होती है गूगल के अंदर, और उसके अंदर एक एवरेज बिड जनरेट होती है जिसके अगेंस्ट यहाँ पर एड्स डिस्प्ले होते हैं। और गूगल का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, नॉट ओनली कि जो सबसे ज्यादा गूगल को पे कर रहा है वही गूगल उसका एड ही टॉप पे डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा गूगल के अंदर कुछ, जिस तरह एसईओ के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, पेड मार्केटिंग के अंदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अगर आप अपनी कैंपेन में इंटीग्रेट कर लें, हो सकता है कि ये वाला एडवर्टाइजर सबसे कम पैसे गूगल को पे कर रहा हो और स्टिल उसका एड सबसे ऊपर टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि उसने एसईएम के अंदर जो फैक्टर्स आते हैं, इनके सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर या पीटीसी पे पर क्लिक के अंदर जो जो टॉप के फैक्टर्स हैं, वो सारे उसकी कैंपेन और वेबसाइट में अगर इंटीग्रेटेड हैं, तो यहाँ पे उसको हो सकता है सबसे कम पे करना पड़ रहा हो, और हो सकता है कि ये वाला एडवर्टाइजर सबसे ज्यादा पे कर रहा हो, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा डायनामिक है और एल्गोरिदमिक बेस के ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, तो यू कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि कौन बंदा कितना पे कर रहा होगा एक एड को के ऊपर अपीयर होने के लिए, एक पोजीशन के ऊपर अपीयर होने के लिए। अब यहाँ पर ये पहले 4 जो है उन्होंने एड्स दिखाए हैं। सपोज आप अगर एसईओ के अंदर पहला भी रैंक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, इसका मतलब है कि आपका रैंक बनता है 5th, अगर आप एसईओ में टॉप के ऊपर भी रैंक कर रहे हैं। और पेड एड्स जो है, प्रीवियस क्यूरी जो हमने देखी, तो यहाँ पर मैप्स रैंक कर रहे थे नंबर 1 पे, एंड यू वर ऑन द 4th पोजीशन इन एसईओ। और जो उससे नेक्स्ट पोजीशन हमने देखी एड्स, यहाँ पर 4 एड्स आ रहे हैं, and fifth one is the SEO ranking, which is starting from, and after that there is question answers going on. But यहाँ पर मैं एक important point about SEO आप लोगों के माइंड में जो है डालना चाहूंगा कि ये है कि suppose if you are an advertiser और आप जो है आपका डेली बजट सपोज 1,000 रुपए, किसी का 5,000 रुपए, किसी का 10,000 रुपए है। सपोज आपका बजट 1,000 रुपया है और आपने 200 रुपए की बिड रखी हुई है, एक एवरेज क्लिक आपको 200 रुपए का पड़ रहा है। जो बंदा, जब यूजर आएगा और 5 मरतबा आपके एड पे क्लिक करेगा, आपको 1,000 रुपए चार्ज हो जाएंगे। वेदर यू गेट द क्यूरी और नॉट, दैट इज सेपरेट थिंग, बट गूगल विल चार्ज इट्स मनी based on the clicks that you have received on your website. Okay, so कहने का मकसद ये है कि जब आपका 1,000 रुपए का या 5,000 रुपए का बजट, वो आप बेशक 5 मिनट में एग्जॉस्ट कर लें या बेशक पूरे दिन में एग्जॉस्ट करें, जब आपका डेली का बजट एग्जॉस्ट होगा, गूगल विल स्टॉप डिस्प्लेइंग योर एड्स in the top position, and if you are not available in the SEO position somewhere on the first, second, third page, you have no chance to get any traffic. आपकी ट्रैफिक immediately जीरो हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं इसका हो सकता है पीपीसी का। लाइक आपका जो जितना भी बजट है उससे ज्यादा यानी कि स्पेंड नहीं हो सकता, आपका जो भी बजट है वहां पर जाकर ये चीज स्टॉप हो जाएगी, और आपको फिर यानी कि दूसरे मेथड्स देखना पड़ेंगे जो भी ट्रैफिक को गैदर करने के हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीपीसी को एसईओ के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं नहीं पीपीसी ज्यादा बेहतर है, एसईओ ज्यादा बेहतर है। तो बेसिकली द थिंग इज दैट ना पीपीसी ज्यादा बेहतर है ना एसईओ ज्यादा बेहतर है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी करंट नीड क्या है बिजनेस की। और अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, ये मेरी बात आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर इन सारे के सारे फैक्टर्स को आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। एसईओ इज योर बेस लाइन। जो कंपनी जिसकी भी बेस नहीं होती वो कंपनी आज नहीं तो कल गिर जाती है। यानी कि सपोज आप कहते हैं कि जी मुझे एसईओ की जरूरत नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप पेड मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और पेड एड्स के अंदर आप जो है डिफरेंट गूगल के एड्स हैं, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, याहू एड्स, आप ये सारे कुछ चला लेते हैं। अब एक ऐसा फेज आता है आपके बिजनेस में जो कि साल में मल्टीपल महीनों में हर बिजनेस पे आता है कि एड्स चला रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही, और एट द एंड होता ये है कि आपका जो बजट है वो चोक कर जाता है, और
you stop spending, you have to stop the ads. Then at that time, you don't have repeat clients because you have not done the SEO and you have not made your marketing strategy strategically. आपने just impulsive base के ऊपर अपनी marketing strategy बनाई है कि अभी currently हम client ले लें और जो है उसके बाद हम देखेंगे बाकी methods। तो उसका मतलब ये है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस को प्लान नहीं किया। एसईओ अगर आपने इंटीग्रेट नहीं की अपने बिजनेस में, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया एंड ऑर्गेनिक जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपने एसएमओ एंड एसईओ अगर इसको इंटीग्रेट नहीं किया अपने बिजनेस में, तो योर बिजनेस इज अल्टीमेटली गोइंग टू सफर इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि पूरे साल में और पूरे क्वार्टर में बिजनेस एक जैसा नहीं रहता। बिजनेस बहुत ज्यादा डायनामिक चीज है और ये फ्लक्चुएट करता है सीजन टू सीजन, स्पेशली e-commerce. So it's my advice to all you guys के SEO के लिए जरूर जो है प्रिपेयर करें अपने बिजनेस में। SEO के अंदर कुछ फर्दर बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे वॉइस सर्च। इस वक्त जो वॉइस सर्च है वो डोमिनेट कर रही है काफी सारे सेक्टर्स के अंदर। तो जो आपका कंटेंट है वो वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द वर्ड्स, इट शुड बी ऑप्टिमाइज फॉर द वॉइस सर्च एज वेल। ऑन पेज एसईओ किसको कहते हैं? जो काम भी आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे, कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट को, उसके कीवर्ड्स को, उसके इमेजेस को एनहांस करें ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके जब वो आपकी वेबसाइट पे आए, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि जब आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं, दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट के लिंक्स बिल्ड करते हैं उसको पॉपुलर करने के लिए, उसको गूगल में ऊपर रैंक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। SMO, which I just recently talked about, social media optimization. Social media organic इतना important है इस वक्त बिजनेस के लिए कि अगर आप पहले पेज के ऊपर रैंक भी कर रहे हैं गूगल के ऊपर, लेकिन फिर भी वो क्लाइंट आपके सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा और वो देखेगा कि आपके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो वो अपने आप को आपसे रिलेट करने की कोशिश करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, और आपका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो जज करने की कोशिश करेगा सोशल मीडिया के थ्रू। इसके बाद ASO आती है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन? जो एप्स जिन लोगों की हैं जिनका ताल्लुक ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से है, वो लोग अपनी एप्स को भी रैंक कर सकते हैं जस्ट लाइक इन गूगल। सो इफ यू राइट इन गूगल इन द प्ले स्टोर, if you search any app, suppose cricket news. So if I type in cricket news, so you see cricket news, यहाँ पे क्रिकेट बज आ रही है, क्रिकेट लाइन आ रही है, और ट्रैक्स आ रही है, ESPN आ रही है, लाइव क्रिकेट आ रही है। इसका मतलब है कि इन सब लोगों ने अपने आप को एसईओ ऑप्टिमाइज किया है जो कि टॉप पर आ रहे हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर भी आ रही होंगी कुछ एप्स, अब यानी कि ये बेतहाशा एप्स आ रही हैं क्रिकेट से रिलेटेड, तो इनकी ऑप्टिमाइजेशन लेस है बनिस्बत इन जो है एडवर्टाइजर्स के या इन जो है एप्स के, ताकि इस वजह से इनकी एप्स जो है गूगल पे टॉप पे आ रही हैं। एक क्यूरी मैं लिखता हूँ आप लोगों को, सपोज you see this website Rozee.pk, this is the keyword that we ranked when I was in Rozee.pk and I was working with their CEO. So ये पहले Indeed और ये सारे links पहले आया करते थे और Rozee.pk कहीं पीछे आती थी 10वें 11वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड है जो हमने रैंक करा था एट दैट टाइम। और अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह it's been many years and it's still ranking on the second position. So right now the first is Indeed and then Rozee and then LinkedIn. So at least LinkedIn से भी पहले Rozee की साइट आ रही है, which means कि इसकी optimization बहुत अच्छी है in all means. So these are some examples of the ASO. VMO, what is VMO? It's a new term. Normally people don't use it, but I have created it, this term because SEO, SMO, ASO, all the terms are for their relevant specific usage. So वीडियो ऑप्टिमाइजेशन जब भी करनी होती है तो लोग YouTube SEO कहते होते हैं। YouTube SEO is the right word only when it comes to YouTube, but there are a lot of other search engines as well. So you have to say
VMO for the video optimization. So like video media optimization, because when you are saying YouTube SEO, so it only relates to YouTube. It doesn't relate to other mediums. So VMO is the right, or should be the right word for this video media optimization, or any video you're optimizing on YouTube. यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रैंक किए हैं, और इसकी भी टर्मिनोलॉजीज वही होती हैं जिस तरह एसईओ के अंदर जो चीजें यूज होती हैं, जो फैक्टर्स यूज होते हैं, उसी तरह एएसओ में भी वही फैक्टर्स यूज होते हैं, सोशल मीडिया पे भी वही फैक्टर्स यूज होते हैं, और वीडियो मीडिया में भी वही फैक्टर्स यूज होते हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर आप अपनी वीडियो को पॉपुलर करना चाह रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा इंटरचेंज होता है उनका, द वे यू यूज दोज थिंग्स इन एसईओ आर डिफरेंट द वे यू यूज इन ऑन यूट्यूब. That is the only difference. So, going further, what are the digital terminologies? Press releases, like you see the news media outlets, they are publishing things about different companies. So, वो जो भी press release news में जा रही होती है उसको press release कहते हैं. Blogs, आप लोग सारे blogs पढ़ते होंगे. Blogs जो है एक informational blogs हो सकते हैं, recreational blogs हो सकते हैं, किसी भी category से हो सकते हैं. Lead generation, that is a very good term for you कि lead generation क्या चीज है. Lead generation जो है बेसिकली होती है कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको क्लाइंट्स चाहिए, तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया या गूगल या सर्च इंजन को यूज करके अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करते हैं, ताकि लोग आपको अप्रोच करें और आपसे क्यूरी करें, और आप उन क्यूरीज को कन्वर्ट करके सेल्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर लें. आप लोगों को ये इन सारी मेथडोलॉजीज के बारे में जिस तो किसी को भी डिटेल जाननी हो, आप यहाँ से junaidtariq.com पर जा सकते हैं, और यहाँ पर फुटर के अंदर हमारा यूट्यूब चैनल लिंक है. इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जा सकते हैं, और वेबसाइट के ऊपर भी हमारा वीडियो सेक्शन है, लेकिन इधर लिमिटेड वीडियोस अभी अवेलेबल हैं. आप सारी वीडियोस अगर आपने देखी है तो आप क्लिक करके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं फुटर से या उन वीडियोस से, और आप सब्सक्राइब डेफिनेटली करें इस चैनल को, आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगी. यहाँ पे इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमारी पर्टिकुलर वीडियोस हैं, जैसे कि ये लीड जनरेशन जिसकी मैं अभी करंटली बात कर रहा हूँ, ये वीडियो लीड जनरेशन से रिलेटेड है. ये वेबसाइट डेवलपमेंट, पेपर पर क्लिक, एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में काफी सारी वीडियोस हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं लेटर ऑन, और आप यहाँ से फ्री इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए SEOdigitalmarketer.com हमने एक SEO की कम्युनिटी बनाई है. सर आपका माइक म्यूट हो गया. अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर. अच्छा, ये प्रीवियसली अभी म्यूट हुआ है या पहले से म्यूट था? नहीं सर, अभी म्यूट हुआ था. अच्छा, ये कोई साहब हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, so should we take question later on after we finish the PPT or right now? सर पीपीटी के बाद लेंगे. Okay, got it. So let's just continue the way we were talking. So digital marketing terminology. This is the funnel. This is a typical funnel. जो आप किसी भी बिजनेस में जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आप उसकी फनल सबसे पहले क्रिएट करते हैं. फनल होती है बेसिकली कि जब आप एक बिजनेस या मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो फ्लो होती है फनल की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किस तरह वर्क करती है, ये इस चीज को फनल कहते हैं. कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग, तो सबसे पहले या एक नया ब्रांड करते हैं तो लोगों को पहले अवेयर करते हैं. आप अगर डायरेक्टली परचेज के ऊपर लोगों को लेके आएंगे तो ऑडियंस इज अनकुक्ड राइट नाउ. सबसे पहले आप लोगों को के जज्बात बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को जानना शुरू होते हैं. स्ट्रेट अवे बाय बहुत कम लोग करते होते हैं, और वो थोड़ा सा अनोइंग भी होता है कि सपोज आपने एक चिल्ड्रन वेयर का, सपोज आपने कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सपोज एक ब्रांड लॉन्च किया है, सबसे पहले क्या हो सकता है आपके लिए कि आप एक वीडियो एड बनाएं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सप्लेन कर रहा हो.
ना कि उसको डायरेक्टली सेल कर रहा हो, उसके फीचर्स और यूजर के लिए जो उसके फायदे हैं वो बता रहा हो। अब उसके अगेंस्ट होगा क्या कि इंगेजमेंट जनरेट होगी, लोग लाइक करेंगे, लोग शेयर करेंगे, उसके थ्रू आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, लोग व्यू करना शुरू होंगे। फिर क्या होगा, थोड़े दिन बाद लोग सर्च भी करना शुरू हो जाएंगे आपके ब्रांड को, यानी कि आपका डिस्कवरी फेज में आप चले जाएंगे, लोग आपको सर्च करना शुरू हो जाएंगे। और जब वो आपको सर्च करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपकी परचेज भी जनरेट होगी, और उस परचेज से एक ऐसा क्लाइंट जनरेट होगा जो बार बार आपको सेल देगा और दूसरे लोगों को भी एडवोकेट करेगा और आपकी सेल्स में हेल्प करेगा। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट स्टैटिक नहीं होनी चाहिए आजकल के दौर में, क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट मोबाइल डिवाइस के ऊपर या डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर होता है। आपकी साइट को पिक्सल परफेक्ट और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि जितने पिक्सल उसके बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, ऑटो एडजस्ट वेबसाइट को करना चाहिए। एएमपी क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस ये होते हैं कि जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के पेज की फंक्शनैलिटी मोबाइल पे क्विक लोड करने के लिए थोड़ी सी कम करते हैं, और वो विद अ क्लिक एकदम से पेज लोड हो जाता है। यानी कि जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको वेबसाइट से थोड़ा सा आउट करते हैं आसान अल्फाज में, और सिर्फ जो यूजर के लिए रिलेटेड मटेरियल होता है उसकी इंफॉर्मेशन, उसको आप फोकस करके वहां पे आप यानी कि उन चीजों को रखते हैं। और पीडब्ल्यूए जो है प्रोग्रेसिव वेब एप्स हैं, और ये इस तरह की एप्स हैं कि आप डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और वहां से उसको सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर या अपने जो है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और वो वहीं से डायरेक्टली एज अ शॉर्टकट सेव हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वेब ऐप, एंड दिस इज द फनल व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस। कुछ टर्मिनोलॉजीज मार्केटिंग की केपीआईज या मार्केटिंग के रिजल्ट को गेज करने के लिए यूज होती हैं, जो आप सबको पता होनी चाहिए, जिसमें सीपीएम, कॉस्ट पर मिली, कॉस्ट पर 1000 व्यूज, यानी कि आपने एक एड चलाया और उसके ऊपर 1000 व्यूज आए, उन 1000 व्यूज के अगेंस्ट जितने जो है जो कॉस्ट जनरेट हुई है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर मिली। कॉस्ट पर व्यू, दैट इज कॉस्ट पर व्यू ऑब्वियसली, and cost per visitor. CPV is sometimes referred to cost per view as well and cost per visitor as well. CPA, cost per acquisition. Acquisition होती है एक पूरा एक्शन जो आप यूजर के लिए करवाना चाहते हैं। सपोज आपने आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप यूजर से एक फॉर्म फिल करवाएं अपनी वेबसाइट पे, जो एक इंफॉर्मेशनल या सर्वे फॉर्म है, या एक ऐड टू कार्ट करवाएं। जब वो यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और थ्रू आउट द फ्लो करके कंप्लीट कर लेता है उस एक्शन को जो आप करवाना चाह रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसके अलावा आरओआई, आई थिंक ये आप सबकी सबसे पसंदीदा टर्म होगी फ्यूचर में जब आप बिजनेस करेंगे, या अगर करेंटली कर रहे हैं तो अभी भी आपकी हो सकती है। ROI इज द मोस्ट कंसर्न थिंग जो कि एक बिजनेसमैन कंसर्न हो सकता है अपने बिजनेस के बारे में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बिजनेस इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता। अब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, ये ई कॉमर्स बिजनेस के केस में डिफरेंट होती है, और सर्विसेज बेस्ड बिजनेस में डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में डिफरेंट होती है, सैस बेस्ड बिजनेस में डिफरेंट होती है। हर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। ऑल्सो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भी ये वेरी करती है। गूगल के ऊपर आरओआई को कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट तरीका हो सकता है, और फेसबुक के ऊपर आरओआई को कैलकुलेट करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। तो इट कैन relate to whatever business you are doing according to that. ओके, ऑब्वियसली ये सारी वेबसाइट बहुत कॉमन है, आप सारे जो है इन वेबसाइट्स के familiar होंगे, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर। These are the websites that you need to get familiar with, and these are some of the advertisement types that are available in these websites. तो इन इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे कौन कौन से ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट्स की। Even LinkedIn has a way to promote itself or its users. Okay, the tools जिनके बारे में आपको familiar होना चाहिए, और I hope that आप familiar होंगे भी इन सारे tools के थ्रू। Google Analytics, Google Webmaster Tool, which is the Google Search Console as well,
एंड गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक एनालिटिक्स, इन सारों को सर्च कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपको क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पे एनालिटिक्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल में आपको दिखाता हूँ। गूगल सर्च कंसोल का क्या व्यू होता है, ये देखें, ये एक कंपनी है, इनकी ट्रैफिक यहाँ पे 4 दिसंबर को जस्ट 4 क्लिक्स थी, और ऐसे जैसे जैसे इसके ऊपर एसईओ का काम हुआ और ये ट्रैफिक बढ़ती जा रही है 27, 45 एंड राइट नाउ इट्स अराउंड आई थिंक 60 प्लस विजिटर्स तक ये जा रही है ट्रैफिक ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये सर्च कंसोल का डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे जो कोई इश्यूज होते हैं वेबसाइट के अंदर वो हाईलाइट होते हैं। पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स, ये एक बड़ी नई टर्म आई है गूगल के अंदर, जो कि आप सब लोगों को बीइंग एसईओ या डिजिटल मार्केटर्स काफी ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली ये होते हैं, एक वेबसाइट कितनी देर में लॉन्च होती है, कितनी देर में क्या स्पीड क्या है वेबसाइट की। सपोज मैं एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन करता हूँ, कोई BBC न्यूज, सपोज वी ओपन वेबसाइट BBC न्यूज एंड रेकनिंग, और अगर हमें इसको चेक करना है कि ये पेज कितनी देर में लोड होता है, तो हम जाएंगे गूगल पेज स्पीड चेकर के ऊपर, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की स्पीड कितनी है, बेहतर है या खराब है। अभी गूगल हमें चेक करके बताएगा कि वेबसाइट के कोर वेब वाइटल्स की क्या पोजीशन है। कोर वेब वाइटल्स इज बेसिकली द स्पीड मैट्रिक्स ऑफ अ वेबसाइट, हाउ क्विक इट लोड्स। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट 2 सेकंड के अंदर फुल लोड हो रही है, लार्जेस्ट कंटेंट, एंड फर्स्ट कंटेंट इज जस्ट 1.4 सेकेंड्स। सो यहाँ पे और फर्दर ये वेबसाइट काफी क्विक लोड हो रही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं स्पीड से रिलेटेड डिफरेंट, जो कि यहाँ पर हाईलाइटेड हैं। गूगल यहाँ पे आपको बता देता है कि वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज हैं, तो आप डेवलपर्स के थ्रू इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं इन सारे इश्यूज को, और अपनी वेबसाइट की स्पीड मजीद बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम मोबाइल चेक करें, हम डेस्कटॉप पे अगर चेक करें तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे स्कोर आ रहा है 72, और मोबाइल पर यहाँ पर स्कोर आ रहा है 28, विच मीन्स के मोबाइल पर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू, एंड दिस इज द व्यू ऑफ द एनालिटिक्स। अभी मैंने आपको सर्च कंसोल का व्यू दिखाया था, ये एनालिटिक्स इस तरह होता है। यहाँ पे यूजर्स आते हैं, न्यू यूजर्स आते हैं, सेशंस आते हैं, इनकी भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि आपको यू हैव टू बी फेमिलियर विद के एक यूजर, ये जो है यूजर्स का मतलब होता है कि यूनिक यूजर कितने आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और न्यू यूजर्स का मतलब होता है कि इन में से कितने यूनिक हैं यूजर्स, ये टोटल यूजर्स आ रहे हैं 8315 टोटल यूजर्स, आउट ऑफ देम न्यू यूजर्स इस टाइम पीरियड में जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, इस टाइम पीरियड में यूनिक कितने हैं यूजर्स। और सेशंस होते हैं, एक्चुअली ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है आपके लिए कि वो यूजर कितने पेजेस कितने सेशंस लगा रहे हैं। सपोज मैंने अभी कंप्यूटर ओपन किया हुआ है और मैं उठ के चला जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो ये इसी वेबसाइट का सेकंड सेशन काउंट होगा। और नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर कितने सेशन लग रहे हैं, 1.14 सेशन लग रहे हैं। पेज व्यूज जो ये 7,898 यूजर्स हैं, या जो टोटल यूजर्स हैं 8,315, ये कितने पेजेस व्यू कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के, दैट इज 19,351। सो हर यूजर अप्रोक्सीमेटली दो व्यू कर रहा है पेजेस, 2.03 इज पेजेस पर सेशन। एवरेज सेशन ड्यूरेशन इज 2 minutes, so every user is spending around 2 minutes on the website. Bounce rate, that is 71.99%, यानी कि 71% लोग
दूसरा पेज ओपन किए बगैर आपकी वेबसाइट का, या नीचे स्क्रॉल डाउन किए बगैर एग्जिट कर रहे हैं। आपको इसके बारे में स्पेशली कंसर्न होना चाहिए कि बाउंस रेट 50% और लेस 40-50% टू मैक्सिमम 60%, दैट इज कॉल्ड आइडियल बाउंस रेट। बट अगर आप इससे ऊपर जाते हैं 70-80-90%, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ चेंजेस करनी चाहिए अपनी कैंपेन में। जिस सोर्स से ट्रैफिक आ रही है, या तो वो रिलेटेड नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में बहुत ज्यादा, इस वजह से बाउंस रेट इतना ज्यादा आ रहा है। Further, if you drill down in the analytics, आप अगर all channels खोलें तो यहाँ पे organic, social, direct, referral, different methods आ रहे हैं, यानी कि किन किन sources से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, ये वो सारे sources बता रहा है आपको। अच्छा, डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स एंड देयर कंपैरिजन। सो आपको ऑलरेडी पता होगा डिजिटल मार्केटिंग में, जिस तरह कि मैंने यह बताया कि डिफरेंट यूजर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से कितने यूजर्स आ रहे हैं, यूएस से कितने यूजर आ रहे हैं, यूके से कितने यूजर आ रहे हैं, आपको पता लग रहा है। और एक एक यूजर किस पेज पे जा रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, यू हैव एवरी नीटी ग्रीटी ऑफ एवरी यूजर available with you in digital marketing. Whereas if you're advertising on TV or radio or billboard, you don't have that probability। आपको नहीं पता कि क्या जो सा होगा आपके साथ, यानी कि आफ्टर एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी और बिलबोर्ड एक्यूरेट 100% रिजल्ट नहीं आ सकते। दैट विल बी एस्टिमेशन के, अच्छा इतने लोग इस एज ग्रुप के हो सकते हैं, इतने लोग इस एज ग्रुप के हो सकते हैं। यू कैन जस्ट गेस दैट, बट यू कैन नॉट से फॉर सर्टेनिटी के इसके अंदर इतने इस एज ग्रुप के लोग आए हैं। और ये जो सेगमेंटेशन है टारगेटिंग की, वो आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली ऑफलाइन चैनल्स पर नहीं कर सकते, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में अवेलेबल है। आई थिंक गाइस वी नीड टू ज्वाइन अगेन, द लिंक इज गोइंग टू एक्सपायर in just less than a minute anytime, so I'm going to join again in few seconds। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, let us continue from where we just left। So we're back again, guys। We were discussing digital marketing campaign tracking। What is the digital campaign tracking? कैसे आप अपनी कैंपेन के लिए, आपकी कैंपेन के रिजल्ट्स के लिए, so what you can check is that how many people saw your ad। You can get that tracking from analytics or the ad managers where you run the ads। और इसके अलावा how many people have clicked to your ad, what are the actions they took after clicking, can show them ads based on the actions they took on your web or app। यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अगर सपोज लोग कार्ड ड्रॉप आउट करके जाते हैं, तो उन लोगों को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं जो कार्ड ड्रॉप आउट करके गए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, और आप उनको ट्रैक कर सकते हैं कि किस बंदे ने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्शन लिया है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस चीज सबको ट्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, डू ए बी टेस्टिंग। सेकंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने एड्स की, यानी कि आप 2 या 3 या 4 5 10 डिफरेंट एड्स चलाते हैं सेम प्रोडक्ट के, और आप उसमें से ये देख सकते हैं कि कितने लोग एक्चुअली उन्होंने किस ऐड पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और किस ऐड पर उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक क्लिक के ऊपर यानी कि अवेलेबल है डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू। यानी कि आप 10 ऐड अगर चलाते हैं और आप क्लियरली उसमें से उन एड्स के अंदर से विनर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये ऐड जो है मेरा सबसे बेस्ट ऐड रहा, इस ऐड के ऊपर सबसे ज्यादा जो है मुझे क्लिक्स आए। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में ए बी टेस्टिंग के लिए। गूगल और फेसबुक इटसेल्फ भी अलाउ करता है आपको वेरिएशंस बनाना एड्स की, ताकि आप अपने बेस्ट एड्स आइडेंटिफाई कर सकें कि किस एड के अंदर ज्यादा आपको जो है क्या कहते हैं फायदा हुआ। तो इसकी एक रीजन ये भी होती है, अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं किसी कंपनी में और सीईओ आपको कहते हैं या आपके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एक बंदे को ब्लू कलर पसंद है, एक बंदा कहता है मुझे ग्रीन कलर पसंद है, एक बंदा कहता है मुझे व्हाइट कलर पसंद है। अब आप परेशान हो जाएंगे, यार मैं किसकी ओपिनियन पे जाऊं। आप
लोगों की ओपिनियन पे जाएं, जो आपका यूजर है। जब आप ए बी टेस्टिंग रन करेंगे तो लोग आपको अपना फीडबैक देंगे थ्रू देयर रिस्पॉन्स ऑन द एड। आप देखेंगे एक एड आपने चलाया, उसके ऊपर 100,000 की रीच आ रही है, एक उसी एड की जो सेकंड वेरिएशन है उसके ऊपर 50,000 की रीच आ रही है, और उसकी जो थर्ड वेरिएशन है उसके ऊपर जस्ट 20,000 की रीच आ रही है। तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को, या जो भी आपके सीईओ हैं या पार्टनर्स हैं, उनको क्लियरली बता सकते हैं कि देखें, ये जो एड मैंने चलाया है, ये ब्लू कलर का, ये हमारी ऑडियंस को पसंद आया और हमें ऑडियंस को प्रेफर करना है, ना कि अपनी प्रेफरेंस को। तो दिस इज द राइट वे टू डू बिजनेस। और जो डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू जो एनालिटिक्स हमें आते हैं उनको इंटरप्रेट करने का ये राइट तरीका है। इनफैक्ट इसमें इतने जबरदस्त ट्रैकिंग अवेलेबल है कि आप आई ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि यूजर जो है आपका, वो आपकी वेबसाइट के किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपको जो है वो उसकी आई बॉल्स हिट कर रही हैं। आप माउस ट्रैकिंग कर सकते हैं कि उसका जो माउस है वो किस जगह पे जा रहा है। आप हीट मैप्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह हैं आपकी वेबसाइट पे जहाँ पे प्रोमिनेंटली लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे हीट मैप की एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है, यानी कि ये जो रेड स्पॉट है यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद ये सेकंड रेड स्पॉट है, फिर ये थर्ड रेड स्पॉट है। इसके थ्रू जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, याहू, फेसबुक, ये सारे बड़ी कंपनीज अपने जो ट्रैकिंग है उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पे करके यूजर बिहेवियर को जज करते हैं। और गूगल और ये डिफरेंट कंपनीज इतने सारे चेंजेस किस तरह करते हैं अपने कंपनीज के अंदर, वो इन्हीं इसी डाटा की एनालिटिक्स की बेस पे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डाटा एनालिटिक्स। अच्छा, सेकेंडली ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हाउ टू डिजाइन एन इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन। यानी कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए अपनी, फिर आपको फिगर आउट करना है कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस एज से बिलोंग करते हैं। अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज होने के साथ साथ आपको अपनी ऑडियंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। नो योर ऑडियंस। स्टेजेस क्या होते हैं एक कैंपेन के? अवेयरनेस, कंसिडरेशन, देन परचेज। दीज आर द स्टेजेस ऑफ अ कैंपेन। क्रिएट कैची ग्राफिक्स एंड एड कॉपी। आप अपनी जो है ग्राफिक्स को कैची रखें और ऐसा रखें कि वो यूजर को इजीली कम्युनिकेट हो जाए आपका मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं जिस एज ग्रुप को। सेकेंडली, ए बी टेस्टिंग। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू गाइड कि आप गेस वर्क रिमूव करें, और इसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एड एस्प्रेसो। इफ यू रनिंग फेसबुक, सो एड एस्प्रेसो क्या करता है, आपके अप टू 300 to 400 वेरिएशंस भी कैपेबिलिटी रखता है ये एक सिंगल एड की बनाने की। आप इसमें डिफरेंट हेडलाइंस, डिफरेंट टाइटल्स, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस और डिफरेंट जो है क्रिएटिव डालते हैं और ये डिफरेंट वेरिएशंस उनकी बना देता है। इसके साथ साथ so let us just wrap it up. I've given you all the overview about digital marketing, and the future of digital marketing is growth hacking actually. ग्रोथ हैकिंग क्या चीज है? बेसिकली ग्रोथ हैकिंग एक इंटरमीडिएट कनेक्शन है, ब्रिज है, जो कि प्रोडक्ट से लेके मार्केटिंग टू द कस्टमर, एंड टू एंड टेक ओवर का नाम होता है डिजिटल ग्रोथ हैकिंग। यानी कि एक जो सीईओ होता है कंपनी का, फिर सीसीओ होता है, फिर हेड ऑफ मार्केटिंग होता है, फिर प्रोडक्ट होता है, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट, उन सबको कनेक्ट करके एक ग्रोथ हैकिंग का रोल बनता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर होती है पूरी पूरी कंपनी के अंदर। फ्रॉम एक्वायरिंग द प्रोडक्ट टू सेलिंग द प्रोडक्ट, उसके बीच में जितने भी स्टेजेस आते हैं, और उसको कॉस्ट इफेक्टिवली सेल करना इन अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। सारे जो मेथड्स हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव रख के प्रोडक्ट को ग्रोथ के अंदर लेके आना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हैकिंग और ग्रोथ मार्केटिंग। फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऑलरेडी 5G जो है वो आ चुका है, ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं दुनिया में, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, होलोग्राफिक वीडियोस बन रही हैं, 7D 8D वीडियोस टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इतना ज्यादा इस वक्त हो चुका है कि वो ह्यूमन नॉलेज को चैलेंज कर रहा है। मेटावर्स का दौर आ चुका है जिसमें NFT सेल हो रही हैं, यानी कि पहले पेंटिंग्स और ये सारे ग्राफिक्स वगैरह
फिजिकली सेल हुआ करते थे, और अब ये बिटकॉइन और इस करेंसी के साथ ये पूरा जो है डिजिटल हो चुके हैं। और एनएफटीज के थ्रू लोग जो है बिटकॉइंस के थ्रू, एनएफटीज के थ्रू, और ये सारी ब्लॉकचेन जो एक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू दुनिया की टोटली चेंज होने जा रही है। लाइक काफी हद तक एक स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स तो चेंज हो चुके हैं, कुछ चीजों में ये अप्लाई करेगी फ्यूचर में, कुछ में नहीं करेगी। बट वी हैव टू सी कि किस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन होती है नेक्स्ट डिजिटल टाइम्स में अब फर्दर ऑन। और नेक्स्ट गाइज, आपको थोड़ा सा कैरियर पाथ जो है मार्केटिंग के हवाले से मैं गाइड करता चलूँ लास्ट में, कि कैरियर पाथ मार्केटिंग में आपका डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो सकता है। आप, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप फ्रेश ही हैं, तो आप किसी भी कंपनी में एज अ इंटर्नी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, फिर आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, फिर जनरल मार्केटिंग मैनेजर, ईवीपी मार्केटिंग मैनेजर, फिर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और फर्दर सीईओ, व्हाटएवर role or entrepreneur you want to become. So this is a general journey of a digital marketer throughout explained. So guys, your questions are welcome right now. So all your valid questions related to digital marketing you can ask, and inshallah we'll try to answer them within our capacity, inshallah. So you need to make you the host, I think. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? Fine. I want to ask you one question. Yeah. As you know, advertisement, there are many websites that you can make. So which one is the best one that we can make advertisement? Okay, you're talking about the PPC advertisement, that which website is best for your budget to spend on, right? Yes. Yeah. So actually, in the very start, I explained that if you are, suppose I'll give you a general rule of thumb. Suppose if you are an e-commerce company, then social media will suit you in the Asian demographics. Okay, it depends from the demographic to the demographic as well. If you're in Europe and USA, there's a total altogether different strategy. And if you're in Pakistan, Asia, and the MENA region, UAE region, then it's a different strategy. Suppose generally, by the rule of thumb, e-commerce, social media works more like Instagram, TikTok, Facebook. These are the mediums for the e-commerce brands. Okay, and if you are looking for generating long-term strategy, or like if you have a long-term strategy for your brand, then SEO, organic social media SEO. Quick strategy for e-commerce is the social media advertisement. And if you're running a service-based business in which the user have to search your company, like suppose the plumbers, if you advertise a plumber on a social media, how do you know that I need the plumber right now or the client need the plumber right now? The right now factor depends a lot where you're going to advertise. If you're advertising that kind of a product or service which needs to have an intent, first of all, I need to make an intent first, then purchase, then it has to be SEO and PPC through the search network. And if it is an impulsive buy, suppose I like t-shirts and I'm scrolling the web, my Facebook or Instagram, and all of a sudden I saw a Facebook ad and it is only $5 or $25 for a t-shirt, I'll definitely click on ad and buy it instantaneously, because I don't need to make myself ready to buy a t-shirts. It's just $5, $10 stuff. So all these products which are high ticket items or they have high value, they are sold through SEO and PPC. And all the items which need to sell in quantity and they have low purchase value, then these are generally sold on social media. This is the rule of thumb. Yeah. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि सर ऑटोमेशन ईमेल्स में हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरा ये कि एज अ स्टार्टअप या किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए आप बूस्टिंग रेकमेंड करेंगे या बजटिंग, इसके बारे में सर थोड़ा बता दें।
बजटिंग से क्या मुराद है आपकी? सर जिस तरह पीपीसी, मैं फेसबुक के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। एक बूस्टिंग होती है और दूसरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। यस सर। अच्छा, स्टार्टअप किस चीज का स्टार्टअप है आपका? सर एक सर्विसिंग रिलेटेड कंपनी है सर, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ सर। देखिए, सर्विस रिलेटेड कंपनीज के लिए जो है ना, सर्विसेज नॉर्मली तो आप अगर ऐसी सर्विस है जो हाउस होल्ड सर्विस है, जो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है, जैसे पेस्ट कंट्रोल होगी, ये एक सर्विस है, उसको तो आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन जनरली ज्यादातर सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जो बड़ी सर्विसेज आती हैं, जैसे लॉयर की सर्विस है, किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सर्विस है। अकाउंटेंट को अगर एडवर्टाइज करेंगे, जब तक लोगों को अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होगी वो हायर नहीं करेंगे उसको। तो अगर ऐसी सर्विस है, प्लम्बर, और जो जैसे कोई भी स्मॉल टास्क हैं जो घर के यानी कि होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं, सोशल मीडिया, दैट इज बेस्ट। स्टार्टिंग अ कंपनी, आपकी दो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं डेली यानी कि हंड्रेड ऑफ स्टार्टअप्स के साथ मेरा वास्ता पड़ता है, और यानी कि हम लोग डेली बहुत सारे लोग बिजनेसेस क्लोज होते हुए देखते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस खड़े होते हुए देखते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में जाते हुए देखते हैं। तो उसमें बेसिकली एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ पैशन, ताकि आप अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकें। सेकेंडली, आपको बजटिंग करनी है एटलीस्ट 6 मंथ्स टू ईयर की। आपके पास बजटिंग होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली बिजनेस को रन कर सकें, ताकि 3 महीने बाद ये ना हो कि आप बिजनेस से आउट हो रहे हो, कि बजट्स वगैरह का इशू होगा। सबसे पहले तो आपको अपने बजट्स अलाइन करने चाहिए, वेदर इट इज ऑर्गेनिक या पेड। ऑर्गेनिक से स्टार्ट करें अपने बिजनेस को। ऑर्गेनिक सोशल मीडिया, अगर आपके बजट टाइट हैं, बजट लो हैं, या बिल्कुल आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल जीरो से किसी चीज को बिल्ड करूं, तो आप जीरो से स्टार्ट करने का तरीका ऑर्गेनिक है। एसईओ से स्टार्ट करें और एसएमओ से स्टार्ट करें। अपने ब्रांड को ऑर्गेनिकली बिल्ड होने दें, थोड़ा टाइम दें उसको, 6 महीने साल उसको वैसे चलाएं। जब आपका ये टिप आप सबके लिए है, जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा करें ना, तो 1 साल पहले से उसको टाइम देना शुरू कर दें। यानी कि जब आप बजट लगाने से 1 साल या 6 महीने पहले आप उसकी बेस बनाना शुरू कर दें, क्योंकि 6 महीने या साल आपको लगेंगे उस बिजनेस की बेस बनाने में कि आप उसको सेल कर सकें। अगर आप आज की तारीख में कोई बिजनेस डेवलप करते हैं, उसकी वेबसाइट, ऐप और सारे मीडियम्स और जो ऑनलाइन ट्रस्ट है, जो यूजर का ट्रस्ट है, उसको गेज करने में आपको कम से कम 6 महीने या साल लगेंगे। और उस यही वो पीरियड होता है जिसमें लोग डिसअपॉइंट होकर बिजनेस छोड़ जाते हैं। इस वजह से एक बिजनेस जब स्टार्ट करें, उसको 6 महीने साल पे ऑटो पायलट पे ऑर्गेनिकली पे लगा के छोड़ दें, और 6 महीने साल बाद उसको देखें कि कितने, हर महीने उसको गेज करते जाएं कि उसकी अच्छा ग्राफ आपका पॉपुलैरिटी का ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपकी ऑर्गेनिक इंप्रेशन ऊपर जा रहे हैं, आपकी रीच ऊपर जा रही है। और जब आपको लगे कि हाँ, यूजर हमारे साथ इंगेज करना चाह रहा है, तब उसके साथ जो है वो इंगेज करें, यानी कि पेड मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन अगर आप जल्दी शुरू करना चाह रहे हैं और टाइट बजट भी टाइट है और जल्दी शुरू करना चाह रहे हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए, तो देखिए ऑर्गेनिक आपको 3 महीने में, 6 महीने में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देगा। आपको हर हालत में पेड के ऊपर जाना पड़ेगा। अब पेड के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि आपको जो है एक अपनी फनल बनाएं, टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस, फिर कंसिडरेशन, फिर परचेज, और उसके हिसाब से अपने एड्स को डिवाइड करें और एड्स के बजट को, कि कितना बजट मैंने डायरेक्ट सेल पे लगाना है, कितना बजट मैंने अवेयरनेस पे लगाना है, कितना बजट मैंने कंसिडरेशन फेज में बनाना है। और ये आपकी कैंपेन्स होनी चाहिए स्टार्ट में। आई होप आंसर योर क्वेश्चन। यस सर। और सर ये ऑटोमेशन क्या होती है सर ईमेल में, ये थोड़ा आप बता दें। हाँ, ऑटोमेशन, बेसिकली ऑटोमेशन के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मेलचिम्प है, कॉन्टैक्ट, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट है, फ्री सॉफ्टवेयर मेलचिम्प है। अप टू 1 to 2,000 ईमेल्स वो आपको कॉन्टैक्ट्स को फ्री यानी कि करने देगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। आप मेलचिम्प करें, अगर वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट है उसमें से तो बना के कर सकते हैं। अगर शॉपिफाई आपकी वेबसाइट है, शॉपिफाई में भी डायरेक्टली अवेलेबल है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट भी है, और एप्स में आप उनके थ्रू फ्री अप्रोच कर सकते हैं। उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं है, स्टार्ट में आपके 500,000 यूजर्स तक।
Okay, so we have another question from Mehak. She is also saying that Twitter is a free social networking microblogging service that allows registered members to podcast short posts. Is it right? क्वेश्चन थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, समझ नहीं आया आपकी क्वेश्चन। Mehak was saying that Twitter is a free social networking microblogging service. So does it allow the registered members to broadcast its short post as well? ट्विटर देखें सोशल मीडिया है, इट्स नॉट अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया पे तो आप ट्विटर के ऊपर तो आप इवन बहुत कम वर्ड्स लिख सकते हैं, उस पर पोस्ट ही जाती है, उसके ऊपर ब्लॉग नहीं जाता। आपका ब्लॉग का आप लिंक शेयर कर सकती हैं और अपनी ओपिनियन शेयरिंग के लिए बेसिकली ट्विटर है। इट्स नॉट अ ब्लॉग प्लेटफॉर्म और पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म। आप अपनी पॉडकास्ट और वो उसके साथ लिंक कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा के वहां से अपना ट्वीट करके और वहां से फिर आप कर सकते हैं उसको यूज। Right. Okay, so if we don't have any further questions, so we'll move to the end. So in the end, I would like to thank our guest, Mr. Junaid Tariq, for coming here today and explaining the digital marketing scope in such a vast manner. And we would like to thank our audience as well for being so patient and so motivating to the speaker. Also, we'd like to present our token of appreciation to our guest speaker. Is it sharing? I'm unable to share. Ashar? Yes, Samraj, you can share it now. Okay, so we'd like to present a token of appreciation to our guest speaker, Mr. Junaid Tariq. Thank you so much, sir, for coming today. It was Thank truly you. an informative session. Thank you everyone, thank you। So we'd like to express our gratitude towards Dr. Bhagwan Das for being a part of this session as well. Thank you so much, sir, for joining us. It was a pleasure to have you. Is Dr. Bhagwan Das here? No, I guess he left. Okay, thank you so much, everyone, for joining us today. Take care and Allah Hafiz.